ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਪਟਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਮੈਕਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਚਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਵੱਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡੀਲਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਘਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਟੂ ਮੂਵ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ, कितने कितने अवेलेबल कस्टम हाउस ने जड़े जी। साउथ साइड पे जितने भी हमारे आउटलाइन एरियाज हैं, जो भी नए डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस टाइम साउथ ईस्ट में, देखिए ज़्यादातर सारे ही एरियाज में हमारी मार्केट के हिसाब से देखिए बहुत डिपेंड करता है। इस टाइम डील्स आपको हर एरियाज में मिलेंगी। अब आपको ये पता करना है कि डील का वैल्यू क्या होती है। अगर आपको डील मिल रही है तो वो डील जो मैं जिस वैल्यू पे मैं घर को खरीद रहा हूँ, क्या वो एक्चुअली डील है या नहीं है। राइट। तो देखिए वहाँ पे हमारा ऑफ कोर्स रियल्टर्स का एक्सपीरियंस काउंट करता है काफ़ी, क्योंकि हमें पता है वहाँ का मार्केट रेट, सर्कल रेट कितना चल रहा है और कितना अपग्रेड्स पे टिपिकली बिल्डर्स को देना ठीक रहता है जी। हमारे साउथ साइड पे काफ़ी एरियाज हैं, नए आउटलाइन एरिया, जैसा मैंने आपको कहा, जो हमारे डेवलप हो रहे हैं, विच इज़ हिल्स एट चार्ल्सबर्ग देखा है एक एरिया, वॉकर समिट, अरोरा एंड समरसाइड एंड ऑर्चिड्स। समरसाइड देखिए थोड़ा सा वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, वहाँ पे कुछ नया लैंड अभी अवेलेबल नहीं है, बट समरसाइड का जो एक्सटेंशन है जिसको हम कहते हैं ऑर्चिड्स, वो जितनी भी लोगों की समरसाइड में रिक्वायरमेंट थी और जो नहीं ले पाए वहाँ पे क्योंकि लैंड खत्म हो गया समरसाइड पे, तो वो आज के रेट पे ऑर्चिड्स में बाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी डील्स आज के रेट पे काफ़ी अच्छी मिल रही हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको यू हैव टू बी पेशेंट व्हेन यू गो आउट शॉपिंग फॉर अ हाउस। आपको सबसे पहली चीज़ आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और आपका बजट क्या है। अगर आपको वो नहीं पता होगा, देखिए तब तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तब तो आप हर चीज देख लेंगे, आपको हर चीज अच्छी लगेगी। ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं तो बहुत होती है जी, बहुत होती है। कई बार कुछ क्लाइंट हमारे पास आता है, कहता है मेरी तो रिक्वायरमेंट ये है, बाय द टाइम यू स्टार्टेड वर्किंग विद देम 2 weeks डाउन द रोड, 3 weeks डाउन द रोड, वो अपनी उनकी रिक्वायरमेंट ही चेंज हो जाती है। वो कुछ ऐसा घर देख लेते हैं अपने दोस्तों के साथ जाके, अपने रिलेटिव्स के घर जाके, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं अपना बजट बढ़वा लूंगा, मेरा बैंक लोन बढ़ सकता है, तो आप मेरे को ये घर दिखाइए। तो एक अपना माइंड मेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके साथ में अगर आपका कोई फ्रेंड है जो रियल एस्टेट में है, या फिर अगर आपके पास रियल्टर नहीं है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मुझे ही यूज़ करिए, बट गेट एन ओपिनियन फ्रॉम अ रियल्टर बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ट्रस्ट मी, हम मार्केट में रहते हैं पूरे टाइम, जैसे आपने भी बताया, काफ़ी लोगों के साथ हम जाते हैं घर देखने, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसके हिसाब से हमें एक्सपीरियंस मिलता है जो हमने लास्ट 6, 7, 10 सालों से गेन किया है जी। तो उसकी कुछ वैल्यू हम आपको दे सकते हैं, तो आप हमें इन्वॉल्व करिए, चाहे वो नया घर हो चाहे पुराना घर हो। और जहाँ तक बात रही पूरे प्रोसेस की, वो फिर हम आपको डिटेल में आपके साथ बैठ के वी गाइड यू थ्रू द होल प्रोसेस 1 by 1, और हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग में नहीं बताते हैं, जिससे वो फिर बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़ें, कंफ्यूजिंग हो जाती है जी। बिल्कुल। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਰੇ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਮੂਵ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ प्रोसेस की रह जाता है, कितना प्रोसेस चलता है? देखिए जो छोटे घर हैं उसमें तो आपको रेडी टू मूव इन में काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं। छोटे घरों को मैं बोलूँगा जो टिपिकली स्टार्ट होते हैं 3, 10, 3, 20 से लेके 4 तक,
थोड़ा इनकी जो वैल्यू है ये मोर अफोर्डेबल होते हैं। बिल्डर्स भी हर स्पेक होता है, एक स्पेसिफिकेशन, बिल्डर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से घर बनाते हैं, वो बना के फिर बेचते हैं। तो वो घर तो आपको देखिए काफ़ी मार्केट में मिल सकते हैं जो तकरीबन 3 से 4 के बीच में होते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको अपना ड्रीम हाउस बनाना है, या जो आप बहुत सालों साल आप उसके लिए सेव कर रहे हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को 5, 5.5, 6, 6.5, 7 लाख तक जाना है, और आपको बड़ा वॉकआउट लॉट चाहिए, कस्टम बिल्ड करना है, देखिए उसमें आपको रेडी टू मूव इन घर मिलने में बहुत मुश्किल होगी। उस टाइम आपको बिल्डर से जाके बात करके अपना लॉट को बुक करके उनके साथ कस्टमाइज घर स्टार्टिंग से बनवाना पड़ेगा फ्रॉम स्क्रैच। या कई बार होता है कि वो कुछ शो होम बना रहे होते हैं या कोई घर बन रहा होता है, बट वो उसके चांसेस बहुत लिमिटेड होते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा घर मिल भी गया जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी पोजीशन भी राइट अवे नहीं होगी, वो इट कुड बी अबाउट 4, 5, 6 मंथ्स आउट। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਰੀਅਲਟਰ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ सर्विसेज ਤੁਹਾਡੀਆਂ प्रोवाइड ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी, देखिए रियल्टर का जो प्राइमरी मोटिव है ऑफ कोर्स वो इन्वॉल्व हुआ है आपके साथ, क्योंकि आपको घर खरीदनी है और आपको स्ट्रेस फ्री घर खरीदना है आपको, क्योंकि प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता है, स्पेशली अगर आप मार्केट में फर्स्ट टाइम है। तो हमारा जो काम है बेसिकली टू मेक श्योर कि जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ हो आपके लिए, आपको कोई ज़्यादा इश्यूज ना आए, और आपके लिए कुछ अनवांटेड सरप्राइजेज इन दी एंड, या जो जिसकी कॉस्ट आपने फैक्टर इन नहीं करी थी, जो आपको पता नहीं था पहले से। तो हमारा जॉब रहता है कि आपको वेल प्रिपेयर करें। और हमारा देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा काम खत्म हो जाता है जब आप घर के अंदर मूव इन कर जाते हैं, बट टिपिकली रियल्टर का रोल होता है राइट फ्रॉम द डे यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ होम अंटिल यू मूव इनटू अ होम। मेन टाइम हमारा वहाँ पर रहता है, वहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं आपके साथ एवरी स्टेप ऑफ द वे, और विल मेक श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हुई हो और आपको पूरा प्रोसेस टाइम पे कंप्लीट हुआ हो। उसके बाद देखिए हमारे कंट्रोल में चीज़ें कम होती हैं, क्योंकि आपने घर ले चुके हो। अब बिल्डर यूजुअली जब आप नया घर खरीदते हैं, जिस भी बिल्डर के साथ आप घर खरीदेंगे वो यहाँ पे ओरिएंटेशन करता है। तो जिस दिन आपको कीज मिलती हैं, आप उस दिन बिल्डर के पास जाते हैं, वो 2 घंटे का आपको वॉक थ्रू देते हैं और पूरा बताते हैं घर के बारे में ऊपर से लेके नीचे तक। उस टाइम अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं आप उसी टाइम पूछिए बिल्डर से। अगर आपको नहीं भी पता है, वो एक आपके पास पैकेज छोड़ते हैं, इसमें सबके नंबर्स होते हैं, आपके कस्टमर सर्विस के, प्लम्बर के, सारी ट्रेड्स के, कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको इनको कॉल करना है। अगर कल को कोई इमरजेंसी हो जाती है, लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, ऑफिसेज बंद है, रियल्टर भी बाहर गया हुआ है, अवेलेबल नहीं है, उस केस में आपका इमरजेंसी नंबर आपको दिया जाता है कि वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। बट टिपिकली मैंने देखा है, मेरे साथ खुद भी एक्सपीरियंस रहा है कि कई बार हमारे एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है, महीने 2 महीने से घर देख रहे होते हैं, रिलेशनशिप ऐसा होता है कि अब जब भी उनको कुछ क्वेश्चन होगा, वो एक टेंडेंसी होती है वो हमें कॉल कर लेता है। बट उस टाइम पे हम एफर्ट जरूर करेंगे कि हम ठीक है, हम बिल्डर से बात करके, या मे बी आई ट्राई टू कनेक्ट यू टू द राइट पर्सन। बट देखिए हमारा भी उतना ही काम होगा जितना, जैसे अगर आप फोन करेंगे या मैं फोन करूंगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। वो मेरे को भी उसी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको भी उसी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। मैं एक डायरेक्ट एंट्री बिल्डर के पास नहीं दे सकता जस्ट बिकॉज आई हैव सोल्ड देयर प्रॉपर्टी। तो मैं सजेस्ट तो यही करूंगा कि आप एक प्रोसेस को फॉलो करें। जब आपके पास एक पूरा पैकेज दिया जाता है बिल्डर से, तो फॉलो विद दैट प्रोसेस। अगर आपको वहां से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, तो देखिए हम तो बैठे हैं यहाँ पे, तो 100% आप हमें कॉल कीजिए एंड विल ट्राई टू बेसिकली कनेक्ट यू बैक टू द बिल्डर, कि आपके जो सारे कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हो सकें। राइट। तो दोस्तों, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਗੁਰੂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਰੀਅਲਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਹੋਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਕਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਫਾਈਨਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ है कि ये चीज़ें फेस होंदियां ने? हाँ जी, होती है। मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये सेम चीज़ बोली है, और देखिए ये बट नेचुरल है, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो आपको टॉप मोस्ट मॉडल दिखाया जा रहा है। आप सपोज करें आप गाड़ी लेने जाते हैं, आपको फुली लोडेड गाड़ी दिखाते हैं, उसके हिसाब से आपके बजट के हिसाब से बिल्डर आपको सेम स्ट्रक्चर तो दे देगा, फीचर्स नहीं देगा घर के अंदर। आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इंटीरियर नहीं दे पाएगा, राइट? कुछ इंटीरियर फिनिशिंग होगी जो सिर्फ शोरूम पे एक्सक्लूसिव थी और उसमें उन्होंने पैसा खर्चा था। तो शोरूम जो होता है, देखिए वो बिल्डर का मोटिव होता है बनाने का कि वो आपको अपग्रेड्स वगैरह बेच सकें, और उसमें भी बिल्डर्स कमाते हैं। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि बिल्डर्स उसमें से पैसा कमाते हैं। वो अपने अपग्रेड्स को प्रमोट करने के लिए शोरूम बनाते हैं कि आप घर उनका देखने जाएं, जब आप उनका शोरूम चेक करते हैं आप कहते हैं हाँ ये भी एक अच्छा आइडिया मैं अपने घर पे कर सकता हूँ। तो ये जरूर आप अपने दिमाग में रखेंगे, जब आप शोरूम देखने जा रहे हैं आपको सेम एग्जैक्ट सेम चीज नहीं मिलेगी। शोरूम में हमेशा ज्यादा अपग्रेड होते हैं क्योंकि बिल्डर वो उनको बेच के पैसा कमाना चाहता है ऊपर से। तो मेरे कुछ क्लाइंट्स होते हैं, जब हम जाते हैं शोरूम्स में, मैं उनको एजुकेट करता हूँ अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूँ कि भाई ये चीज़ जो है ये इनके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में नहीं होगा। आपको डबल चेक करना कि आप बिल्डर से पूछें कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, लिखने के टाइम। तो वो चीज़ें फिर हम डबल चेक जरूर करते हैं। बट देखिए ये बट नेचुरल है, इसमें अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो सोल्यूशन एज सच। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। कई बिल्डर्स हैं जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है उनके साथ, क्योंकि वो आपको प्रिपेयर कर देते हैं फ्रॉम डे वन कि भाई देखिए ये आपने शोरूम देखा है, अब हम आपको जो आपका घर बन रहा है वो किसी ने भी देखा नहीं हुआ है, आप सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं अपने दिमाग में। तो आपको अपने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना इट्स अ वेरी वेरी बिग टास्क। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रिपेयर करना है कि आपके घर पे ऐसी फिनिशिंग होगी, आपके घर पे ये चीजें होगी। तो जब हम सिलेक्शन सेंटर में जाते हैं बिल्डर के, तो अपने क्लाइंट के साथ बैठ के हमको पूरा बताते हैं कि ये आपका फ्लोरिंग होगा, ये आपके वॉल पे सीलिंग टेक्सचर होगा, ये आपके लाइट फिक्चर्स होंगे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि भी लोकी कई दफा लाइटली ले लेंदे ने, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸੀਲਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਂਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹ 5000 ਦਾ ਬੈੱਡ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2000 ਦਾ ਬੈੱਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੋਕ ਫਰਕ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੁਝ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨੋਟ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਬਿल्डर ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਐਲਟਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ होने चाहिए। बिल्कुल जी, देखिए एक नया घर जो है डिटेल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी क्रूशियल। तो आप जब भी नए घर पे देखने जाते हैं, शॉप अराउंड कर रहे हैं, आप शोरूम्स में जा रहे हैं, तो द फर्स्ट प्रोसेस व्हेन यू सिट डाउन विद द शोरूम सेल्स पर्सन टू डिस्कस प्राइसिंग, आपको सबसे पहले उनके साथ बैठ के पूछना है भाई आपकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, और जो आपके शोरूम पे लगा हुआ है वो सब कुछ इंक्लूडेड है या वो नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या नहीं है, राइट। तो डिटेलिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आपके लाइट्स जो लगी होती हैं उसके कम से कम 5-6 डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, तो कौन सा पैकेज इंक्लूडेड है, कौन से पैकेज में कितना अपग्रेड आएगा। तो ये जब आप देखने जाते हैं, डोंट रश ऑन दैट डे। अगर आप हाउस शॉपिंग गए हैं एंड इफ यू सिटिंग इन द शो होम विद सेल्स पर्सन, मेक श्योर कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो जिससे आप डिटेल में शोरूम के सेल्स रैप के साथ बात कर सकें। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਐਲਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦਾ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਐਲਟਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਐਲਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਰਿਐਲਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ प्रिपेयर होके चलो। बिल्कुल जी, हमें वो क्वेश्चंस पता होते हैं क्योंकि हमने एक्सपीरियंस करा हुआ पहले, चाहे वो गुड वे में हो चाहे बैड वे में हो, बट हमें पता होता है कि क्या चीजें हमें पता करनी है। कहीं पर क्लाइंट को भी नहीं पता होता कि मैंने क्या पूछ लिया सामने से, बट मैं पूछता इसलिए हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा क्लाइंट उससे अवेयर हो जाए। तो देखिए बिल्कुल फायदे तो उसके होते ही हैं। मैं बार बार इस चीज में स्ट्रेस करता हूँ कि कोई आपके साथ कंसल्टेंट, कोई रियल्टर, कोई एक्सपर्ट होना चाहिए जो सेम प्रोसेस के थ्रू जा चुका हो, वरना मोर देन ऑफ्टन आपको एंड में जब आप घर पे मूव इन करते हैं यू विल हैव सम सरप्राइजेस। लाइक क्योंकि दोस्तों क्योंकि ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੰਮ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਘਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਲੈਣਾ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਰਿਐਲਟਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ
ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸਿੱਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं करना चाहना कोई ऐसा तो नहीं कुछ होगा? बहुत बड़ी क्वेरी है ये हमारी इंडस्ट्री में, और ये ऐसी चीज़ है जो हम हर रोज फाइट करते हैं, चाहे वो बिल्डर्स के साथ हो चाहे क्लाइंट के साथ हो। बट मैं एंड ऑफ द डे यही कहना चाहूँगा हमारे क्लाइंट्स को, हमारे व्यूअर्स को, कि देखिए जब आप रियल्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं अपनी डील में, नो प्लेस और इट जस्ट डजंट मीन कि आप अपने घर पे ज़्यादा पैसा खर्च रहे हैं, या अगर आप रियल्टर के बिना जाते हैं तो आपको अच्छी डील मिल सकती है। जो रियल्टर की जो कमीशन होती है, यस वो सेलर पे करता है, इस केस में अगर आप ब्रांड न्यू घर खरीद रहे हैं बिल्डर से तो वो बिल्डर पे कर रहा है, बट वो जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी अकाउंटेड है उनकी कॉस्ट शीट पे बिल्डर की, जब उन्होंने घर बनाया था। जैसे शो होम का सेल्स रेप को पे करा जाता है आउट ऑफ द डील दैट गेट्स डन, अब आप ये तो नहीं बोलेंगे कि मैं शोरूम के सेल्स रेप को हटा दूं, मैं डायरेक्टली हेड ऑफिस में बात करूं तो मुझे इनके पैसे बच जाएंगे। तो देखिए बिल्डर तो जो हर घर बनाता है, इरिस्पेक्टिव वो बड़ा घर बना रहा है, छोटा बना रहा है, कॉन्डो, टाउन हाउस, वो हर एक कॉस्ट में अपने रियल्टर की कमीशंस, शोरूम सेल्स रेप की कमीशंस, हर एक की कमीशंस को ऑलरेडी काउंट करके चलता है। तो इट्स बेसिकली अ कॉस्ट फैक्टर। तो बिल्डर्स हर कोई यही कहता है, आप जब भी वहां पे जाएंगे, अगर आप रियल्टर के साथ आ रहे हैं या उनके बिना आ रहे हैं, प्राइस पॉइंट पे आपको फर्क नहीं पड़ेगा कोई, बिल्कुल। और ये मैं इस चीज के ऊपर बहुत एम्फेसिस करता हूँ, एंड आई एम वेरी श्योर कुछ बिल्डर्स ने मेरे सामने मेरे क्लाइंट्स को भी ये चीज बोली है कि जो आपके रियल्टर की कॉस्ट है, आप ये मत सोचिए कि आपका रियल्टर को आप अपनी पॉकेट से उनको पे कर रहे हैं, बिल्डर पे कर रहा है, और बिल्डर ने अपनी कॉस्ट में ऑलरेडी वो ऐड कर रखा है। अब आप चाहे इनके बिना आए चाहे इनके साथ आए, ये प्राइस हमारा फाइनल है। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਐਲਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ 2000 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 500 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾहे 10,000 ਦਾ होवे, डिपेंड करता है। कुछ तो फायदे देखिए नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं, हम तो रोज करते हैं नेगोशिएट, चाहे वो रीसेल घर पे हो चाहे ब्रांड न्यू घर पे हो। और देखिए जहां हमें लगेगा कि आपको ऑलरेडी डील मिल रही है या बिल्डर के पास इससे ज्यादा रूम नहीं है, हम आपको राइट अपफ्रंट बता देंगे कि भाई देखिए दिस इज द बेस्ट बिल्डर कैन डू, आई डोंट थिंक मेरे आने के बाद भी आपको इससे अच्छी बेटर मिल पाएगी। और कई केसेस में होता है, हम कहते हैं नहीं ये चीज तो आपको महंगी पड़ रही है, इसमें आप अभी ये करवा सकते हैं, और आप इतना प्राइस के इतना मार्जिन इतना रूम यूजुअली होता है बिल्डर्स के लिए इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस एरिया में अगर आप बना रहे हैं। तो डिपेंड करता है, हमारे पास ऑफ कोर्स हमारा एफर्ट जरूर रहेगा कि हम आपको अच्छी से अच्छी डील दिलवाएं, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हमारा क्लाइंट बिल्डर नहीं, हमारे क्लाइंट आप हैं। राइट। तो अगर हम आपको खुश नहीं करेंगे, आप हमें आगे रेफर नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही गल है। बिल्कुल तुषार जी, तो दोस्तों एक मैसेज ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਟਿਪਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਉਹ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ, ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ एस्टेट एक्सपर्ट की गल करते हैं, रियल्टर की गल करते हैं, कि टिप्स देने तुसीं? यही बोलना चाहूँगा कि जैसा मैंने पहले भी बात करी है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ की सबसे क्रूशियल, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो जो भी करिएगा सोच के करिएगा, एंड मेक श्योर कि आपको प्रोसेस के बारे में पता हो। अगर नहीं भी पता हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप अपने रियल्टर को कॉल कर सकते हैं, एंड व्हाट आई पर्सनली डू इज कि आई सिट डाउन विद यू एंड एक्सप्लेन यू स्टेप by step and go through all the details one by one to make sure कि आपको चीज़ें पता हो और आपके बाद में जाके कुछ सरप्राइजेस ना आए। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ, ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ।